which we study about different states and we study the relations that we have with other nations, right? So international relations not only study about the relations with other states, but in this subject we try to cover all the aspects of the society. For example, we also talk about economy in the subject. We also talk about military in this subject. We talk about human rights, right? And we also talk about the socio-political situation of the country as well. And we also discuss diplomatic relations as well. And what else? Okay, foreign policy comes in under it, and political economy. We will study about environment, and we also study about multinational corporations. We also study about international organizations, and we also talk about NGOs, IGOs and NGOs, right? So it means that international relations covers all the aspects. Engineering students only study about engineering. Medical students, they only study about medical field. Do you study about human rights as well? या LLB जो वाले वो करते हैं वो मेरे ख्याल है सारा कुछ पढ़ रहे होते हैं बीच में, ठीक है? क्योंकि वकालत जो है ना एक ही शोबे की नहीं है बल्कि हर चीज़ पे वकालत करनी होती है. All right. So can you just tell me that if I have the authority, right? Do you think I would be in a position to handle all the things, all the issues of my state alone? I am supposed to handle all my, of course, but without the help of another state, do you think can I be in a position to manage all the things? Right? You need a structure. So first of all, I will tell you that why do we study IR today. In today's class, we will just see that why do we study IR, what was the need to create this subject, what is the scope of this subject, because your first question comes from this, what is the scope and all that. If you have gone through all the past papers, you will have the clear idea. Have you ever seen the syllabus of IR of CSS? Have you gone through the exam papers or नहीं? पढ़ा है एग्जाम पेपर्स को, देखा है, ठीक है? तो कोई सवाल स्कोप से रिलेटेड आता है? पढ़ते क्यों हैं, क्या मकसद है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का? अच्छा, डू यू वांट मी टू बी बायलिंगुअल और अंग्रेजी और बताएं? है? Like in my case, कुछ चीज़ें मैं ऐसी like उर्दू में ज़्यादा सीख रही हूँ, बता दूँगी. अच्छा, ठीक है. I will follow both the languages, ठीक है? तो ताकि जो कोई नई पॉइंट क्लियर होगा, we will get to know, right? ओके जी, चलें जी, किताबें खोलें अपनी अपनी. लिखवाऊंगी बहुत मैं क्लास में, ये जहन में रख लें आप लोग, ठीक है? All right. So the first question comes, why we study IR? Because in vacuum, अच्छा पहले मैं पॉइंट्स बोर्ड पे लिख दूंगी, देन आई विल ओपन दिस फोरम फॉर डिस्कशन. पॉइंट्स ध्यान में रख लें क्योंकि जब एक पॉइंट से फिर डिस्कशन करते हुए हमारे पास दूसरे पॉइंट्स होंगे. और व्हाट आई डू, व्हाट वुड बी माय टीचिंग स्टाइल, जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे मैं उसके मेन पॉइंट्स पहले आपको दे दूंगी, ठीक है? बेसिकली इस क्लास में आपने वो नहीं करना है,
कि पैराग्राफ के पैराग्राफ आपने रटना है और वो नहीं करना. नो, यू हैव टू बी क्लियर इन द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट्स पहले समझ लीजिएगा जितना भी होगा, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे. मे बी आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम योर नॉलेज and maybe you will learn something from my knowledge. So it will be a two-way communication in the class, right? Points मैं लिख दिया करूँगी and then points will be discussed in the class, right? So first, why we study IR? So states don't exist in vacuum, neither they are self-sufficient. All right. So the very first point is states don't exist in vacuum, neither they are self-sufficient. If there is one state, it would be very difficult for that state to survive alone, right? That state cannot manage all the affairs. It has to do the business with other states as well. कुछ आपका इकोनॉमी आनी है, मुल्क में जाना है. पाकिस्तान है, if Pakistan created on in 1947 and if it survived, do you have the idea that can Pakistan survive alone at the time of its creation? नहीं हो सकती थी. So states को जंगल में तो नहीं रहना है ना, right? So this was the purpose of international relations कि हम states को कैसे लेके चलेंगे, क्या होगा. ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको जनरल आइडिया दूंगी ताकि फिर जब हम कल की क्लास आएँ, क्योंकि आज तो थी आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास, कल की जब हम क्लास में आए तो यू हैड सम विजन कि क्या पढ़ा था हमने, आज कल क्या पढ़ा था और आज हमने क्या बात करनी. ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पे. ऑल राइट. सेकेंड पॉइंट इज इंटरैक्शन इज अ कंपल्शन. मजबूरी है, रिक्वायरमेंट है. इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द स्टेट टू हैव द रिलेशंस विद अदर नेशंस. No matter the state is superpower or the developed or the underdeveloped. चाहे तरक्की याफ्ता मुल्क हो, चाहे तरक्की पजीर मुल्क हो, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता. We right now we have how many superpowers? United States of America, China, Russia, so okay, so on and on. But top two ranking, America and China. So do you think they can survive alone? They are dependent on other states for various options. बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे options में they have to be in contact with other nations, right? So यहाँ तक बात क्लियर होगी. बस ये दो ही बातें हैं कि जिसकी वजह से हमने स्टडी करनी है IR की, right? So the beginning of international relations. यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बिगनिंग का मतलब एज अ सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट जो तालीमी निज़ाम में कब शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया और इसकी वजूहात क्या थी. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज
before 1918, international relations did not exist as a subject, separate subject. 1918 में क्या हुआ था? This was the time of World War I. World War started from 1914 till All right. इससे पहले भी लोग बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बारे में पढ़ते थे, लेकिन 1918 के बाद इस चीज़ की रिक्वायरमेंट लाई गई कि लोगों को ना ख़ास तौर पे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाए, अलग से इसको स्टेटस मिला, ठीक है। इससे पहले किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको जोड़ दिया जाता था, हाँ, डिप्लोमेटिक स्टडीज़ में या किसी भी तरीके से, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, देयर इज़ अ नीड टू स्टडी इट। सो द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वाज फ्रॉम इंग्लैंड। पहला जो था प्रोफेसर जो एज अ आईआर का सेपरेट सब्जेक्ट बना था, वो बने थे आपके फ्रॉम इंग्लैंड, राइट। ऑल राइट, ये ऊपर वाले 2 पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? Let me take my glasses. Issues now considered as part of international relations please political theory, history, economy, economics and international law. All right. So the issues now considered as part of IR were seen as part of other subjects: political theory, history, economics and international law. अब इन तमाम इश्यूज को मिला के किस सब्जेक्ट में ले आए गए? Obviously, when you deal with other states, you do your trade through sea, ठीक है? And when you cross your territorial water, you need permission from other states, ठीक है? तो यहाँ पे आपका इंटरनेशनल लॉ आ गया कि सी गोइंग जो शिप्स हैं उनके लिए क्या है लॉ। फिर आप एयर स्पेस यूज़ करते हैं, जब एयर स्पेस यूज़ करते हैं तब भी जहाज़ का कोई कानून है, जिस मुल्क में दिल चाहे आप चले जाते हैं। सो देयर आर सर्टेन लॉज दैट वी नीड टू फॉलो। हम अगर बाय रोड जाते हैं तो हमारा जहाँ दिल चाहे हम चल पड़ते हैं? नो, वी नीड, देयर आर बाउंड्रीज, वी नीड प्रॉपर वीज़ा एंड वी नीड प्रॉपर परमिशन इन ऑर्डर टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस निज़ाम को बहुत अच्छा बनाया गया, एक सिस्टमैटिक वे दिया गया ताकि स्टेट्स जो हैं आपस में उनके फ्रेंडली रिलेशंस हो, और अगर दुश्मनी भी हो तो दुश्मनी भी किसी कायदे कानून के तहत हो। ऐसा नहीं है कि बस जंगल का कानून बन जाए, ठीक है? तो तमाम सब्जेक्ट्स ये जो अलग अलग थे इनको फिर इसके साथ मिला दिए गए हैं, ठीक है? टिल हियर इट इज़ क्लियर? एम आई मेकिंग सम सेंस टू यू? कुछ समझ आ रही है बात? जिनका आईआर का बैकग्राउंड नहीं है कि थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में है क्या, क्योंकि अभी आप लोगों ने चूज़ नहीं किया कि वेदर इट वुड बी योर ऑप्शनल सब्जेक्ट और नॉट। सो इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट, अच्छा, हेयर आई वांट टू टेल यू वन थिंग।
इंटरनेशनल रिलेशंस को कभी ये समझ के नहीं पढ़िएगा कि हमने इसको इम्तिहान में पास करना है, नहीं, बल्कि इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, यू गेट नॉलेज एज वेल। आपको 4 मुल्कों के नाम भी पता चल जाएंगे, उनका गवर्नमेंट सिस्टम क्या है वो भी पता चल जाएगा इस सब्जेक्ट्स में, और क्या बात करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का पढ़ा हुआ बंदा किसी भी जगह पे अगर आपसे खड़ा कर दिया जाएगा ना, तो थोड़ा सा वो इंटेलिजेंट कंसिडर कर रहा होता है, क्योंकि उसको अपने मुल्क की भी इकॉनमी पता होती है, दूसरों की भी इकॉनमी पता होती है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट की यही वैरायटी है और यही इसकी खूबसूरती है कि इट पूरी दुनिया के बारे में बता देता है। तो आपको तमाम कॉन्टिनेंट्स पता होते हैं, आपको तमाम इंटरनेशनल रिवर्स पता चल जाते हैं, तो इट इंक्रीजेस योर नॉलेज, ठीक है। आप चाहे इसको सब्जेक्ट लें या ना लें, बट इट विल बी माई एडवाइस टू यू कि वैसे भी न्यूज़ तो आप लोग देख ही रहे होते हैं, अखबार पढ़ने का भी शौक़ होता है। ख़वातीन थोड़ी सी इस मामले में पीछे होती हैं, ऐसे नहीं, फैशन का नहीं पढ़ते हैं आप लोग, ड्रेसेस नहीं देखते हैं, देखते हैं ना, यू सी अबाउट योर ड्रेसेस हैं, और आप लोग क्या कर रहे होते हैं, ये उस मुल्क की टेक्नोलॉजी देखो, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, मूवीज़ के रिव्यूज़ भी देख रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, स्पोर्ट्स देखते हैं, तो स्पोर्ट्स भी अपना तो नहीं देख रहे होते हैं ना, डेफिनेटली इंटरनेशनल देखते हैं। फिर व्हेन यू वॉच एनी स्पोर्ट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑल द फैसिलिटीज़ कि जो उनके प्लेयर्स को मिल रही होती हैं, एंड देन यू ट्राई टू कंपेयर द स्पोर्ट्स कंडीशन ऑफ योर ओन कंट्री। पाकिस्तानी बेचारा जिधर भी जाता है ना, वो कंपैरिजन में ही लगा रहता है। मैं आज तक पाकिस्तान से बाहर तो नहीं गई हूँ, लेकिन जितना भी मैंने दुनिया या तो डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू देखी है या फिर किताबों में पढ़ी है, तो उसमें ये होता है कि आप अपना ही किबला सीधा करते रहते हैं कि हम किधर जा रहे हैं और ये नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट अदर नेशंस डू एंड व्हाट वी आर डूइंग एज नेशन, तो हम फिर इस कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। चलें जी, मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज as an attempt to make sense of a significant event in the world. International relations began as an attempt to make sense of a significant event in the world history. अच्छा, in this subject we study history as well. If anything happened today, we just go look into the history that whether this kind of situation happened earlier or not. जब आपका कोविड स्टार्ट हुआ था, तो कोविड अपनी नौइयत का एक पहला केस था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस तरह की वबा जो है वो पहली दफ़ा दुनिया में आई थी, बल्कि इससे भी पहले लोगों ने फिर ऑब्ज़र्व किया गया कि किस तरह कोई वायरस फैला, उस पर कैसे कंट्रोल किया गया। तो जब कोई चीज़ नहीं होती है तो आप उसमें थोड़ा सा करते हैं। हाँ, ये ज़रूर इस दफ़ा हुआ था कि अभी हम जिस दौर में सर्वाइव कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली अ टाइम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमें इस तरह का स्टॉपेज वाला एक्सपीरियंस नहीं था कि कोई निज़ाम ज़िंदगी रुक भी सकती है, जैसे हमारा अभी लॉकडाउन, वर्ल्ड लॉकडाउन हुआ था, ठीक है। तो पहले भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन पहले चूँकि इंटरनेशनल मीडिया इतना एडवांस नहीं था, तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी पास, तो इस टाइम पे ज़्यादा महसूस हुआ है। इससे पहले ब्लैक डेथ हुई थी हिस्ट्री में,
और बहुत सारे इवेंट्स होते रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को या हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम पे ऐसे चैलेंजेस आए थे कि जिसमें बिल्कुल निज़ाम ज़िंदगी जो है ना दोबारा से शुरू की गई थी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इवेंट्स की सिग्निफिकेंस देखते हैं कि हिस्टोरिकल इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑल राइट, एंड वी ऑल्सो स्टडी डिफरेंट theories as well. कौन कौन सी थ्योरीज आई यार में? रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यो रियलिज्म, मर्केंटिलिज्म एंड, ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज को भी हम पढ़ेंगे कि किस कानून के तहत हम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को लेकर चल सकते हैं। आप लोगों को पीछे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा है? कुछ आ रहा है, कुछ सर से गुजर रहा है? नहीं नहीं, जो चीज़ सर से गुजरे मुझे वहीं स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है? मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आज बैठे हैं तो एटलीस्ट जब आप इस क्लास के बाद जाएं तो आप कुछ बात कर सके कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात क्या चीज़ होती हैं। दिस इज़ ओनली माई पर्पज़ फॉर टुडे, ठीक है?